नमस्कार, मैं विदिशा श्रीवास्तव ठुकराल कैपिटल मार्केट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। रेगुलर से वर्चुअल की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नॉलेज सेशन के आखिरी पड़ाव 5वें दिन पर हैं। इट वॉज अ स्मॉल ट्राई विच टर्न्स इनटू अ ग्रेट सक्सेस, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। We are promising you to keep providing this kind of excited and knowledgeable series in coming days. हमें आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है that now TCM is serving across the globe digitally. We are easily available on WhatsApp, Facebook, YouTube, and for more information, kindly visit our page TCM Academy. TCM is serving for all your financial solution from last 3 decades. We are assuring you for a hassle-free service by continuous your feedback. Today, in our live session, we are going to have a business diva who turned her weird tilts into a great opportunity, a woman who always want to do something beyond. She is none other than Radhika Gupta. She started her career with McKinsey and later switched to Wall Street. She moved in India in 2009 and became the first lady CEO of a $4 billion AMC Edelweiss. She first introduced domestic hedge funds. A recent launch of ETF Bharat Bond in partnership with Government of India is just another step. A girl with a broken neck is recently honored by Business Today magazine in among most 30th most powerful women in business in India. Now I'm requesting MD and CEO of Tukral Capital Market, Mr. AK Tukral sir, to come and take the session forward. Thank you. Over to you, sir. ठुकराल जी आप म्यूट पे हैं। या सॉरी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है तो अपने को भी म्यूट करके रखा है। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने के पहले अपने कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर संजय जी से कहूँगा कि इसको स्टार्ट करें। 2 मिनट मैं उनसे कहूँगा प्लीज सीपीसी के बारे में और अपने एक्सपो के बारे में बताते हुए राधिका जी का स्वागत करें। Thank you, Thakral Saab. In fact, I am very happy to see personally Dr. Radhika because I have just saw the promo in the morning, and I thought this is going to be amazing. The session is going to be amazing. Okay, so many congratulations, ma'am. I was hearing your video also just a few minutes before, and really I am very thankful to you because you are not whatever you are doing not for your own, but you are the inspiration of the masses, inspiration for the masses. Everyone can take the inspiration that even if you are in the odd situation, you can be asset for any organization, you can be asset for the society. And I feel in that regard, we are fortunate enough to have discussion with you live. So far, CEPC is concerned, this is the autonomous body of Ministry of Textile. And I can say in the carpet industry, in the handmade carpet section, we are the world leader. World leader in terms of production, world leader in terms of export also. Because we are sharing 35% of the share of the world export and production. And our second, distant second, I can say, distant second are China, Pakistan or Iran, you can say. No other. We don't have any competitor. Our only competition is with machine made.
The country like country like Belgium, country like Turkey, they are our competitor. And they are trying to compete with us with unhygienic machine-made carpet. In the handmade carpet, we have the various advantage. We can make the handmade carpet in any size, any color, any design, any pattern. That freedom is not with the machine made. If machine made, any company has to make, they have to make 500 meter or 1000 meter, like that, whatever it is. But in handmade carpet, we have the freedom. We can make the carpet 3x2, 5x3, or 5x7 or 7x9 as per the requirement. We can, regarding the handmade carpet, I hope you are aware, it is said that if one weaver or artisan is making the carpet, two carpet, that can't be twins. I mean, the same person can't make the similar carpet what he has produced some days before. So this is the beauty of the carpet, and that is the handmade carpet. That is the region. We are the world leader. Our major share is going to USA. That is approaching 60. 58% share is going to USA, followed by 25% to EU and some other country. So this is the thing. And during the COVID period, whole world got affected with COVID, and we are also not aloof. So we have given a thought that we couldn't organize our March event. So, why not we go for the virtual one? And I am happy to share with you, I got the report of last 4 days. Today is the 5th day. And I can share with you, just a minute, the 4-day report. And report is very encouraging in the sense, because we were passing through the uncertainty. What will happen? Even the participants were very scared. Even the buyer will come or not. I have the report of the last 4 days event, and I am getting here 561 approved visitors visited the fair. Somehow, 162 companies participated for exhibiting their product from Pan India. The place like Gwalior also, place like Srinagar also, place like Bhadoi, Mirzapur, Jaipur, Agra, Delhi, all across the world, you can say, across India. So 160 companies are participating. I would like to request you also, I will send the personal invite to you. Kindly visit after this show, after this program, and give us the feedback. 561 people has visited this show. Out of that, overseas buyers are 529. And some buying agent and some VIP. So is going very well, and I can say congratulate Mr. Thakral Saab also. He is also part of our show. We have taken him as an associate partner because he is integral part of the carpet industry. He is coming from Mirzapur. Mirzapur is place of my chairman also. So I would like to congratulate you, sir. I hope you must have, many people have visited to your stand also. So that's all from my side. Thank you. Thanks a lot for giving the opportunity. Thank you, Thakral Saab. संजय जी, सिन्हा जी का फोन आया है, प्लीज जरा ईमेल शेयर कर दीजिए. ओके. और अपना लिंक उनको फॉरवर्ड कर दीजिए. ओके. आई एम सेंडिंग इट. थैंक यू. ओके. मैम राधिका जी, 5 दिन से सेशन कर रहा हूँ, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है. आपका प्रोमो देख करके और करीब
100 लोग यहाँ तो 300 फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे तो बाद में जाएगा। और मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जो लोगों ने प्रोमो देखा, ये रक्षाबंधन पे हमारे दोस्तों ने कहा, आपको याद होगा जब आप बनारस आई थी तो बोलो भेज दिया क्या? तो बनारस जब आप आई थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था और आपकी नानी ने ये कविता आपको दी थी। तो हमारे फ्रेंड सर्किल में सबने यही कहा कि राधिका जी को देने के लिए रक्षाबंधन में हमारे पास कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना कुछ है वो हमारे पूरे ग्रुप को टोटल करने पे भी नहीं है। तो लास्ट में यही हुआ कि हम लोग कुछ उनको ऐसा देते हैं जो वैल्यूएबल हो, और ये यूट्यूब पे पहली बार उस दिन लिंक बना, जनवरी से रखा और मेरे ख्याल से मैंने आपको जुलाई में भेजा था और लोगों को बहुत पसंद आया। लोग बनारस की चाट और बनारस की साड़ी और वो सब सुनते थे, लेकिन एक कविता में जिस तरह की आपकी नानी ने बताया वो लोगों को नहीं मिला था। मैं स्टार्ट करता हूं मैम। ये थैंक यू संजय जी, आपने बहुत अच्छा वेलकम किया हमारी मैडम राधिका जी का। मैम आपको लोग एज ए सीईओ तो सब जानते हैं, लेकिन एएमसी इंडस्ट्री में अभी तक जो मैंने देखा है, मैं भी 87 से वर्क कर रहा हूं, तो पहले लोग सेल्स में आते हैं, फिर रीजनल हेड होते हैं, और फिर वो क्या नाम है सेल्स हेड होते हैं, फिर सीईओ होते हैं। आपने इतना सब कुछ कैसे किया कि आप एक इंडस्ट्री में सीईओ भी हैं, आप फंड मैनेजमेंट भी कर चुकी हैं, आप मैकेंजी में भी थी, और आपने और आपके हस्बैंड ने मिलकर इतना बड़ा एआईएफ बनाया, और एआईएफ बनाने के बाद एडिलविस को जब सेल किया तो उनको ये कहना पड़ा कि फंड आप ही मैनेज करो। और मैडम हमने वॉल स्ट्रीट का नाम बचपन से सुना जरूर था, लेकिन दलाल स्ट्रीट से ऊपर कभी पढ़ा नहीं था। इतनी 37 इयर्स की एज में 23,614 करोड़ में देख रहा था 30 जून की फिगर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोलैबोरेशन करके आपने भारत बॉन्ड जो स्टार्ट किया, मतलब आपने 2008 का क्राइसिस भी देख लिया, 2020 मार्च भी देख लिया। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अब आपको स्टार्ट करता हूं, लेकिन हम लोगों को कुछ देके जाइएगा, जो आपकी 5 लर्निंग होगी आपके एक्सपीरियंस से, वो हम लोग को शेयर करिएगा। बाकी अब हम आपके बीच में कोई टाइम नहीं लेंगे, और प्लीज अगर कोई पोल आ जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो ठकराल साहब एंड टू द इंटायर ग्रुप दैट इज लिसनिंग, और काफी सारे लोग मैं देख रही हूँ यहाँ भी हैं, फेसबुक भी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मुझे ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत ऑनर की बात है कि आपका 5 दिन का एक्सपो है, एंड आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लोज इट बिकॉज लास्ट वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेशल, एंड आई एम श्योर इतना खूबसूरत आपका एक्सपो रहा है कि I only hope that I end it in a nice way. So it is my pleasure. मुझे अभी तक मैं बनारस जब आई थी तो पहली बार आई थी, अपनी नानी के साथ आई थी, और मैं ठकुराल साहब से बार बार कहती हूँ कि वो जो ट्रिप है उसकी यादें कुछ खास हैं। अभी भी उसकी फोटो देखती रहती हूँ। मेरे घर वाले कभी इतने करियर में कभी मेरे साथ ऑफिस ट्रिप पे नहीं आए हैं, तो हमने उस ट्रिप पे क्या क्या नहीं किया, और आप लोगों ने यू मेड दैट ट्रिप सो स्पेशल। एंड क्योंकि ये कारपेट एक्सपोर्ट का वो है, आपने हमें कुछ कारपेट दिए थे इतने खूबसूरत, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के मम्मी नानी अभी तक सब उन्हें देखते रहते हैं, सब मेरे से पूछते हैं कि भाई ये कारपेट कहाँ से आए। और मैं अभी सुन रही थी साहब को, तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आई वॉज सो प्राउड हियरिंग कि हमारी कारपेट इंडस्ट्री ने कितना अच्छा काम किया है। हमारी जो कारीगरी है, हैंडलूम वर्क है, you know, not machine made but handmade carpets, the fact that you are number one, you have no competition, I think ये जज्बा जिंदगी में बहुत जरूरी है। तुमने जो जज्बा की आवाज में सुना है, आई थिंक वो बहुत कमाल का है। और दूसरा, आपने मेरे से एक सवाल पूछा बिफोर आई स्टार्ट द फॉर्मल सेशन ऑन इन्वेस्टिंग कि जिंदगी में मैंने क्या सीखा है। एक मैंने जो चीज सीखी है कि वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी आप वॉल स्ट्रीट पे हो, कभी आप इंडिया में हो, जैसे हालात हैं उनमें खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आपकी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। कोविड के दौरान ये फिजिकल कॉन्क्लेव की जगह अब आप एक डिजिटल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी सेवीनेस आ गया है। तो आई थिंक एक जो आगे बढ़ने की स्पिरिट आप लोगों में है वो एक्चुअली कमाल की है। तो वो
मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करूं और कोविड में कैसे ये मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल करना है, उसके बारे में मैं 20-25 मिनट बात कर लेती हूँ, कुछ कहानियों के जरिए बात करती हूँ। आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग। और फिर आपके सवाल जवाब का आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस, पर्सनल और प्रोफेशनल। आई एम लोडिंग द स्क्रीन, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि जो पोल विंडो हैं उनको इग्नोर करिए, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं किया सर। एक बहुत खूबसूरत सवाल था which said, do women manage finances better than men? I don't know ये आपने मेरे कारण सवाल डाला था या नहीं, और उसको मैंने जवाब भी दिया, और उसका आउटपुट ये था कि 76% people think women manage finances better than men। तो आपने श्री गणेश बहुत अच्छा किया है। So I didn't। मैडम, नोटबंदी में यही क्लियर हुआ कि मर्दों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सब लेडीज के पास पैसे निकले, ये वहीं से मैनेज हुआ। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ। तो जो हमारी, और देखिए हमारी मम्मियों को और दादियों को और नानियों को हस्बैंड से पैसे मिलते थे मैनेज करने के लिए, वो मैनेज भी करती थी, घर भी चलाती थी, पैसे भी बचाती थी, और ये भी नहीं कहती थी कि मैं कॉस्ट कटिंग कर रही हूँ और बजटिंग कर रही हूँ और मुझे अवार्ड दो और मुझे प्रेस रिलीज दो। तो ये Madam, I am sharing my personal view. I don't keep a single penny from us. Okay. मेरी वाइफ पॉकेट खर्चा देती है, आप घर बहुत अच्छा से करता है, सारा कुछ मैनेज करती है। तो लेडीज आर ऑलवेज वेरी गुड मैनेजर। देखिए, तो मैंने आपका पोल इसलिए नहीं इग्नोर किया, मैं प्रेजेंटेशन एज वी आर जस्ट स्पीकिंग शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आपको दिख जाएगी, एंड इट्स नॉट इंटेंडेड टू बी अ बोरिंग प्रेजेंटेशन। इनफैक्ट मैं इसकी शुरुआत, क्योंकि आपने कहा था आपने 2008 का दौरान देखा है और 2020 का दौरान देखा है, मुझे लगता है समटाइम, एंड आई स्पीक इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इफ दैट इज ओके, बट समटाइम्स आई फाइंड एवरीवन हैज बीन आस्किंग दिस ईयर कि इतना वॉलेटाइल रहा है। पीपल हैव बीन आस्किंग मी, यू नो, हाउ आर यू डूइंग, एंड आई सेड, यू नो, खुदा की ये फसल है कि कोविड नहीं हुआ है, घर में लोकस्ट नहीं आया है, स्टॉर्म सर्वाइव कर लिया, फ्लड सर्वाइव कर लिया। इट हैज बीन अ वेरी वॉलेटाइल ईयर, बट वन थिंग आई वुड से इज कि हिंदुस्तान में रहना तो chaos is part of the game. I mean, many of you, और ठकराल साहब आपने कहा था that you started your career in 87, so and maybe you can help me on the chat window, जो participants हैं Zoom पे, आप chat window में मेरे साथ, you know, you can interact and answer some of the questions, it will be nice, but I want you to go back to 1989 India, and मैं आपको एक छोटी सी उस टाइम की कहानी बताना चाहती हूँ। तो 1989 में इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आपको पता है तो आप चैट विंडो में डालते जाइएगा, एंड इट्स फन टू डू दिस इंटरेक्शन ऑन चैट। और 89 में एक बड़ा मेजर इकोनॉमिक इवेंट इंडिया में हुआ था in the end of 89. Who was the Prime Minister of India in 89? Does anyone remember? Yeah, no, it was not Rajiv Gandhi actually. No, VP Singh. VP Singh, there we go. So VP Singh had just been elected Prime Minister in 1989, I think November. And on in December 89, वो TV पे आया, he made a statement saying the coffers are empty. The coffers are empty means the government has no money. Now imagine in today's day of Twitter and WhatsApp and Arnab Goswami, अगर प्रधानमंत्री टीवी पे आके ये स्टेटमेंट देते तो तहस नहस हो जाती। फिर आप सोचिए कि इस डेकेड में क्या हुआ। So 1989 VP Singh said the coffers are empty. 1999 में इंडिया saw मंडल कमीशन, which many of us remember, चंद्रशेखर गवर्नमेंट पावर में आई और दुनिया में गल्फ वॉर चल रहा था, ये भी बहुत लोगों को याद होगा दौरान। 1991 में किसी ने कहा था, और आप 92 का भी आगे लिख सकते हैं मुझे चैट विंडो पे, बिकॉज वी विल गो थ्रू द होल डेकेड। 1992 में राजीव गांधी असैसिनेट हुए, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने, और तब लोग they were not very excited about Narasimha Rao because he was a prime minister who was not from the Nehru Gandhi family. 1992 में बाबरी मस्जिद हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ, और इंडियन रुपी 20 से 30 का हो गया। अगेन आप अर्णब गोस्वामी के टाइम पे सोचिए, अगर करेंसी 50% डिप्रिशिएट करती तो क्या होता है इस देश में। एंड देन 1993 where I live, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 1994 में देयर वाज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट। ये सारे उस टाइम के इंडिया टुडे कवर से मैंने उठाए हैं। किससे?
अभी अगर आप एक जैसे ठकराल साहब थे उस टाइम पे 87 में, बहुत लोग थे जिन्होंने अपना करियर 1989 में शुरू किया होता, और आप अगर मार्केट को देख रहे होते तो शायद आपका मार्केट पे ये नजरिया होता कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता. दिस कंट्री इज sheer chaos. Now let me ask a question and you must guess this in the chat window. So I'll give you one clue. In 1989 the Sensex was 700. What do you think it was in 1994? ये सारा decade हो गया. What was the Sensex in 789? What was it in 1994? Someone please put it there. And if someone has this right, Thakral sir will give them a prize. Sure. So what was the Sensex in 1984? Someone said 2000, 2,500. Any others? 4,000 plus. Yes, there you go. You can give yourself the prize. The Sensex was 4,000 at that point in time. So despite a half decade of chaos, the market grew. Now it did not grow. अगर आप right में देखें, it did not grow in a straight line. ऊपर नीचे हुआ. और मुझे लगता है यही हिंदुस्तान का नेचर है. रशेश कहते हैं that living in Indian markets is like standing in a pile of कीचड़ thinking कि यार आज का दिन कैसे कटेगा. लेकिन जब आप आगे देखते हैं तो actually it looks very nice. And I think that is the theme of my presentation कि ये जो volatility की बात करते हैं ये तो जिंदगी का हिस्सा है. Equity market में 2020 मुश्किल रहा है, लेकिन ये तो चलता ही जाएगा. अब ये जानते हुए कि ये चलता जाएगा, हम आगे क्या करें जिससे कि हमारा जो निवेश का इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा अच्छा रहे. And that's why I called this session Make Friends with Volatility, because volatility is going to be there. Now, either you ignore it as, I mean, it's like when I lived in Nigeria, either you say Nigeria is a horrible place, or you realize you have to make the best of Nigeria and get on with life. So this presentation is about how to make friends with volatility. अब equity की मैं आपको अच्छी और बुरी बातें बताती हूँ. Equity की अच्छी बात ये है कि in the long term, अब आप equity में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा तो बनता है. ये तो reality of the matter है. In fact, since 1990, equity market returns have been 12%. Debt has returned 8%. तो equity को avoid भी नहीं करा जा सकता. दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि equity liquid asset class है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है मीडिया के चक्कर में लोग equity को FD से कंपेयर करते हैं और घरों से कंपेयर करते हैं, रियल एस्टेट से करते हैं. I keep telling you, if you were to compare your equity market to your house, और आपकी हाउस की रोज NAV आती ना और वैल्यू रिसर्च उसे स्टार देता और फिर वो व्हाट्सएप पे छपता और घूमता, तो आपका अपने घर के बारे में बहुत अलग परसेप्शन होता है जो आपका equity market के बारे में. So the good news is equity makes money. The problem with equities is equity बहुत volatile रहा है और ये आप लोगों ने experience किया है. In fact, बहुत सारे ऐसे साल हैं, चाहे वो 2008 हो, 2011 हो, 1995 हो, where equity markets have lost 20, 30, 50%, and there are people tell me कि 3 साल तक equity में कोई पैसा नहीं बना है. There are periods where 3 से 5 साल में कोई पैसा भी नहीं बनता है. ये भी हकीकत है. तो ये अच्छा और बुरा दोनों मेरे हिसाब से जानना जरूरी है किसी भी चीज के बारे में. Now there was a very famous US superstar and I love this philosophy she had about herself, and I think ये equity बाजार के लिए भी बहुत true है. She said that if you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. And I think this is true of investing also. अगर आप शेयर बाजार को बुरे टाइम में नहीं अपनाओगे तो आप उसका अच्छे टाइम में देखने के लिए आप रहोगे नहीं. So if you don't love equity at the worst, you will not experience equity at the best. So today I am going to give you 5 tips, as Thakral Saab said, on how to handle equity market volatility. The first tip I'm going to tell you is a story, and it is a story about our emotions. And बहुत लोगों ने आइजैक न्यूटन के बारे में सुना है. I mean, Isaac Newton is one of the smartest people in the world, certainly an IQ much higher than mine, and he was famous for inventing Newton's 3 laws of motion. लेकिन ये कहानी उनके फिजिक्स की नहीं है, ये उनकी स्टॉक मार्केट की कहानी है. तो एक कंपनी होती थी, साउथ सी कंपनी, जिसमें आइजैक न्यूटन ने निवेश किया, and he bought shares of this company at 180 rupees. पैसा डबल हो गया, स्टॉक डबल हो गया, तो वो एग्जिट कर लिए, एंड एवरीबडी फील्स गुड व्हेन द स्टॉक एग्जिट्स. देन व्हाट हैपेंड इज हिज फ्रेंड्स गॉट रिच, द स्टॉक केप्ट डूइंग वेल. नाउ व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन आवर फ्रेंड्स गेट रिच? वी फील बैड,
वी हैव दिस फीलिंग जो बच्चों को होती है फोमो, मिलेनियल भाषा में, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो न्यूटन साहब को भी फोमो हो गया। He bought the stock again at 680 and he bought triple the quantity of the stock. Stock went to 1050, so of course he felt fabulous. Stock collapsed at 175 when he exited. After this, Isaac Newton made a statement that I can understand the planets and the stars, लेकिन मुझे ये market के emotions नहीं समझ आते. And this is one of the smartest men that has walked the earth. तो पहली चीज मैं जो आपको कहना चाहती हूँ कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और हमारा वक्त न्यूटन से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक व्हाट्सएप और अर्नब गोस्वामी और इमोशनली चार्ज टाइम है। तो प्लीज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखिए। जब पूरी दुनिया कह रही है कि इक्विटी में पैसा मत डालो, तब डालने का टाइम है एक्चुअली। और हमने यहाँ ये छोटे से ग्राफ में दिखाया है। इस ग्राफ में आपको अलग अलग साल दिखेंगे। फर्स्ट लाइन इज द रिटर्न्स इन दैट ईयर, सेकेंड लाइन इज द रिटर्न्स इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन दैट ईयर। तो 2008 में आपका इक्विटी मार्केट रिटर्न -50% था और लोग पागल हो रहे थे, बाजार का खत्म, कुछ नहीं होने वाला, इंडिया खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपने निवेश तब किया होता, यू वुड हैव मेड 11%। सिमिलरली 2011 व्हाट यू विल नोटिस इज कि बुरे साल में इन्वेस्ट करने से इंसान का रिटर्न अच्छा होता है। वही मेरिलिन मनरो वाला कोट, if you don't understand me in the bad times, you will never be around to experience the good times. So that is the first piece of advice I want to leave with you. The second piece of advice I want to leave with you is about this thing of मैं market में कब पैसा डालूं। अभी I get a lot of these questions कि मैम निफ्टी बहुत भाग रहा है, 11,000 का निफ्टी हो गया है, 12,000 का हो गया है, लेकिन मुझे पता है ये एक दिन 7,000 का होने वाला है। तो अगर मुझे पता है कि ये 11 का 7 होने वाला है, तो should I sell all my mutual funds? One uncle wrote to me, should I sell all my mutual funds and come back again at 7,000? अब मेरे आपसे दो सवाल हैं कि अगर आपको ये पता है कि 11 का 7 होने वाला है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, न्यूटन से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दूसरा, अगर आपको ये पता भी है और आपकी इंफॉर्मेशन सही है, जब बाजार 7,000 का हो जाएगा, आप में ये हिम्मत होगी क्या नया पैसा डालने की? जब दुनिया कहेगी, जब CNBC में वो होगा X billion dollars of market capitalization wiped off, India story is finished, जब ऐसी ऐसी हेडलाइन छपेंगी, म्यूचुअल फंड दही है, ये सारा नॉनसेंस जब छपेगा, तब आपकी पैसे डालने की हिम्मत होगी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये जो प्रोसेस है कि अभी पैसा डालें, अभी नहीं डालें, यही सही टाइम है। कोई सही टाइम नहीं होता। The sahi time to invest is to constantly invest. I don't try. People keep asking me as a money manager कि आप मार्केट में कब पैसा डालती है? मैं एक्चुअली SIP करती हूँ। मैं साधारण चीज करती हूँ, which is to do an SIP, because I think nobody can do this prediction game. Invest, 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 invest. In fact, हमारी इंडस्ट्री में ये जो SIP का चलन चला है, मेरे से कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं SIP रिटर्न क्या मिलेगा। I think of SIP like a tax. My husband and I, we put about 35% of our post-tax income into SIP. And we think it's a discipline on us. हम उस पैसे का खर्चा ना करें, जैसे हम टैक्स देते हैं, 30% टैक्स देते हैं, वो तो देना ही पड़ेगा। हमें पता है 35% हमें SIP करनी है, ये हमारी सेविंग है। तो SIP is a good behavioral habit and it stops this habit कि कब करें, अब करें, आज करें, कल करें। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, आजकल के मीडिया दौरान में लोग कहते हैं यार SIP से अच्छा तो FD कर लेते। नॉट ट्रू एक्चुअली। हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है कि अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं SIP के जरिए और नॉर्मली, तो ब्लू लाइन इज SIP के जरिए, ऑरेंज लाइन इज नॉर्मली, एंड दिस इज फॉर 10 years। तो ये हमने 4 सिनेरियो आपको दिखाए हैं। पहला सिनेरियो वो है जब बाजार ने कुछ नहीं किया, 0 से 8% का रिटर्न दिया। दूसरा जब 8 से 12, देन 12 to 15 एक्सेट्रा। जब बाजार ने कुछ नहीं किया, रिटर्न 8 से 10, 0 से 8% का है, तभी भी आपकी SIP ने आपको 9% दिया। ये इतना बुरा नहीं है। 9% इन बैड टाइम्स इज नॉट अ बैड थिंग। तो प्लीज साधारण चीजें करते रहिए, उसका एक्चुअली को बहुत नुकसान नहीं होता। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये बहुत पॉपुलर हो गई है आज के दौरान, इसके डू बेसिक थिंग्स। नाउ a lot of people come to me at these times and they're like, मैम अभी गोल्ड में पैसा डाल लें। then they're like, कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है? अच्छा चलो अभी ऑयल बहुत गिर गया, अभी ऑयल कंपनीज में पैसा डालते हैं।
देन देयर इज अ फेज के टेक्नोलॉजी में पैसा डालते हैं, फिर फार्मा में डालते हैं. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन ऑन द चैट विंडो. व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर थीम टू इन्वेस्ट इन 2007? कैन एनीवन गिव मी एन आइडिया? और एनीवन जो 2007 में था, आप चैट विंडो में डालिए, कौन सा बहुत बड़ा थीम चल रहा था 2007 में? या समवन पुट इट देयर, इट इज इंफ्रा. मेरी शादी जिस दिन हुई थी उस दिन रिलायंस पावर का आईपीओ था. मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे पापा को मेरी शादी के रिसेप्शन से ज्यादा रिलायंस पावर के अलॉटमेंट पे इंटरेस्ट था. ये इंफ्रा का क्रेज था उस दौरान. एंड उसके बाद 2008 हुआ, तो सबसे पॉपुलर थीम क्या हुआ तब? इट बिकेम डेट. नाउ कैन यू गेस फॉर मी कि 2011 में सबसे पॉपुलर थीम क्या था? कैन एनीवन गेस फॉर मी ऑन द चैट विंडो? इंफ्रा वाला तो लोगों ने पक्का गेस कर लिया. आई मीन दैट वाज दैट पॉपुलर. एनी आइडिया 2011 में सबसे पॉपुलर क्या थीम था? आई सी वेरी एक्टिव चैट विंडो. हिमांशु हैज गेस्ड गोल्ड. बिल्कुल, दैट इज इट. So gold was the most popular theme in 2011. Then in 2012 and 13 there was a pharma and FMCG phase. 2014-17 to 17 अच्छे दिन आ गए थे, तो मिड एंड स्मॉल कैप का चलन चला था. अभी फार्मा का चलन चला है. अब हमने एक छोटा सा मैथ्स किया कि अगर आपने ये सारे पॉपुलर थीम्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपका क्या रिटर्न होता. दैट इज व्हाट इज देयर ऑन द लेफ्ट, दैट इज 6%. अगर आपने राइट में एक सिंपल निफ्टी फंड और लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड विल ऑल लुक बेटर देन दिस, उसमें इन्वेस्ट किया होता, यू वुड हैव डन बेटर देन डूइंग ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये सब करना ना अच्छा बहुत लगता है कि चलो आज फार्मा कर लिया, फिर ये न्यूज पढ़ी, फिर ये करा, फिर ये टिप मिला, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है. 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड डू साधारण थिंग्स. 80% जिंदगी दाल चावल में कटनी चाहिए. 20% आप बाहर खाना खा लो, वो मुझे समझ आता है, लेकिन 80% तो जो सदियों से चलता आ रहा है वो करना जरूरी है. इनफैक्ट एक कंपनी है फिडेलिटी, उसने कभी एक एनालिसिस किया था कि उनके जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए थे. एंड दे फाउंड आउट कि जो डेड अकाउंट्स हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा लेके छोड़ दिया था, एक्चुअली उन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न कमाया. फाइनली द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज द फोर्थ थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट. और अब ठकराल साहब शायद मुझे थोड़ा डांटेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग देना चाहती हूँ, क्योंकि शाम का माहौल है, आपका कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाला है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, so there can't be a food party afterward. But I want to give you an example of whiskey, which is one of my favorite asset classes. And I'm not a whiskey drinker, but I'll still give you a whiskey example. So many people know single malt whiskey. It is the finest whiskey. So 2 years ago, I made a trip to Scotland, which is the home of single malts with my father. So we went to a single malt distillery to see कि ये भाई whiskey बनाने का process क्या होता है. So this mixing of whiskey actually is a very quick process. ये 10-15 दिन में हो जाता है. जो expensive bottles बिकती हैं whiskey की, ये बनती बहुत जल्दी. उसके बाद क्या होता है, this whiskey sits in a cask. It's a wooden cask and it just sits there. And it sits there for years and years and years and it compounds. और मौसम चाहे जो भी हो, जो भी चल रहा हो, वो विस्की कास्क में बैठ के कंपाउंड करती जाती है. ठीक है. एंड ओवर टाइम इट एक्वायर्स फ्लेवर एंड एज. नाउ वन थिंग, आई टुक दिस पिक्चर एंड आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्चर एट द विस्की पार्लर. एंड दिस शोज यू, अगर आप ये ऊपर का देखें, हाउ द विस्की एजेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. नाउ वन थिंग द डिस्टिलर टोल्ड मी इज दैट ये जो 0 years का लिक्विड है, जब तक ये 3 साल का नहीं होता, आप इसे लीगली विस्की कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसने वक्त ही नहीं बताया. आई थिंक मार्केट में भी कुछ ऐसा है. 3 साल तक तो यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एन इक्विटी इन्वेस्टर. आपने एज ही नहीं दी है. सो यू हैव टू गिव थिंग्स टाइम एंड यू हैव टू एंड्योर सीजन्स. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ विस्की प्राइसेस. A 12-year-old bottle of whiskey in this distillery costs 40 pounds. Now an 18-year-old bottle of whiskey actually, which is 50% older, does not cost 50% more. It costs double. It costs 80 pounds. अभी मैं इसकी एज 25% और बढ़ा देती हूँ, 18 से 23 कर देती हूँ. 23 साल पुरानी विस्की कॉस्ट 400 pounds. अभी मैं इसकी एज 10% और बढ़ाती हूँ. 25-year-old whiskey costs 2,000 pounds. See the magic of time.
तो मार्केट को आप जरूर टाइम दीजिए। टाइम का फल विस्की में भी और बाजार में भी मिलता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ विस्की वाला एग्जांपल है, तो ये मैंने मैथ्स मार्केट के साथ कर ली है। दिस इज 1 लाख इन्वेस्टेड इन द निफ्टी, द रिजल्ट इज वेरी मच द सिमिलर। नहीं तो आप कहने वाले थे कि मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम करके किसी विस्की फंड में डालता हूँ। म्यूचुअल फंड भी उतना वो है, थोड़ा ग्लैमरस का है, तो वक्त दीजिए। Last thing I want to tell you about investing, and this is an example very close to me, is that जब हम बाजार के बारे में सोचते हैं, then you don't need to invest all your money in risky things. It is very important to make sure कि आप उतनी रिस्क लें जितनी आपको समझ आती है। बहुत पुरानी गणित है और आप सब तो बिजनेसमैन हैं, आपको तो ये समझ आएगी that अगर आपके 100 रुपए 80 रुपए हो गए, if you lost 20%, then to go from 80 to 100 actually is a 25% gain you need to make. लेकिन अगर आपका 100 से 50 हो गया, to go from 50 to 100 you need to actually double your money. I realized this. मैं ना 2008 में 100% my money I used to put in equities. I thought young हूँ यार, ठीक है। Then 2008 happened. I realized मेरे पैसे तो कटे ही 50%, लेकिन जिस कंपनी के लिए मैं काम करती थी वहां भी ये हो गया। ऊपर से मेरे पतिदेव इसी इंडस्ट्री में है, तो उनके साथ भी ये हो गया। एंड आई रियलाइज कि मेरी इतनी एपेटाइट नहीं है ये सब सहने की। सो नाउ आई इन्वेस्ट इन इक्विटी टू द क्वांटम आई एम कंफर्टेबल विद। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल सिंस दिस इज द इवनिंग ऑफ द बॉक्स ऑफिस व्हिच आई फाइंड वेरी यूजफुल। माय फ्रेंड इज द सीईओ ऑफ अ लार्ज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एंड ही सेज, राधिका, जब तुम फिल्मों के बारे में सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री? You think Sanjay Leela Bhansali, 100 crore की फिल्म, सलमान खान, बड़ा बॉक्स ऑफिस, etc. But the secret is those films don't make money. The films that make money are small budget films. So I got this from him. This is the box office collection of different movies. And if you can see, their budget is in the left and then their return on investment is in the right, because film is also a business. स्त्री, बधाई हो, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये छोटी बजट की फिल्में हैं, पैसा ज्यादा बनाती हैं, लेकिन बात आप सिम्बा और बागी और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में करते हो। ऐसा ही कुछ चलन मार्केट का है, बात आप मिड कैप की और स्मॉल कैप की करते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बाजार में जो सिर्फ कुछ प्रतिशत पैसा इक्विटी में डालते हैं, लेकिन उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म टेंड्स टू बी वेरी गुड। मैंने एक एग्जांपल अपने फेवरेट प्रोडक्ट का दिया है, विच इज a product called BAF. It puts about 50-60% of its money in equity and 40% of its money in fixed income. जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, it varies it. तो अच्छे मार्केट में इक्विटी में ज्यादा पैसा डालता है, बुरे मार्केट में कम डालता है। I use this product, that is why I put it here. But अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो BAF आपको वही मार्केट वाला रिटर्न देगा, लेकिन अगर आप ऑरेंज बॉक्स देखें तो इसकी रिस्क और ऊपर नीचे जैसे छोटी बजट की पिक्चर होती है, इसकी रिस्क उससे आधी है। तो इक्विटी में भी निवेश करने के लिए समटाइम्स यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन जो वही आउटकम देता है कम हार्ट अटैक के साथ, क्योंकि जिंदगी भी पीसफुल कटनी चाहिए। सो जस्ट टू समराइज, इमोशनल कंट्रोल, मैंने आपको वो न्यूटन वाली कहानी सुनाई थी। नॉट टाइमिंग द मार्केट, एसआईपी का हमने एग्जाम्पल दिया, बेसिक्स की हमने बात की। टाइम इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको विस्की वाला एग्जाम्पल तो जरूर याद रहेगा। एंड देन फाइनली वो जो पिक्चर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, दैट यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन इक्विटी, इन्वेस्ट व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। फाइनली आई वांट टू लीव यू विद, और ठकराल साहब को पता है मुझे कविताओं का शौक है, तो मैं आपके साथ एक कविता छोड़ती हूँ जो एक्चुअली निदा फाजली ने लिखी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसे पार्लियामेंट में जिंदगी के लिए दोहराई थी, लेकिन मुझे लगता है इसका निवेश से बहुत करीबी रिश्ता है, because it talks about exactly what this presentation does in so long. It says in 4 lines that you can't control volatility, you have to make friends with it. तो मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ, लिखी भी है। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो निवेश के सफर में, बाजार के सफर में, आपके खुद के सफर में धूप तो होगी, मेरे सफर में भी रही है, ये जानते हुए आगे चलना है, और सभी इस सफर में लगे हुए हैं। और हमारे वास्ते देखो, बाजार तो बदलेगा नहीं,
इकोनॉमी नहीं बदलेगी, ना कोविड बदलेगा, ना लोकस्ट बदलेंगे, लेकिन ये जानते हुए अगर हम खुद को बदल सकें, खुद के बिहेवियर को बदल सके, तो आगे चलने में हमारी समझदारी है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया एंड ठुकराल साहब, ओवर टू यू। मैम मजा आ गया, और आपकी बात सुन के एक बार वो जो अभी आपने कविता कही है, हम आपको फुल स्क्रीन पे कर रहे हैं, आप इसको फिर से सुनाएं, क्योंकि और इसका थोड़ा सा अर्थ भी बताएं, क्योंकि बहुत अच्छी कविता है। बहुत अच्छी, एक मिनट मैं आपको ये मैं स्क्रीन yes. हाँ, नाउ यू कैन हियर इट। तो मैं आपको पहले एक कविता सुनाती हूँ, फिर इसका मैं आपको अर्थ दोबारा बताती हूँ, प्लीज। हाँ, तो कविता ये है कि सफर में धूप तो हो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। अब किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको खुद ही तो चलो। और ये निवेश के बारे में अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि जो निवेश का सफर है या जो जिंदगी का सफर है, इसमें धूप, परेशानियां, वॉलेटिलिटी, ये सब तो होगी, ये जानते हुए लेकिन हमें आगे बढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी दूसरी बात है कि हमारे साथ जैसे निवेश के बाजार के सफर में सभी लगे हुए हैं कि भाई पैसे कमा लें, कुछ तरक्की कर लें, सभी लगे हुए हैं इस सफर में, तो ये जानते हुए हमें चलना चाहिए। दूसरी जो इसकी पंक्ति बहुत वो है कि किसी के वास्ते ना राहें नहीं बदलती। अब ये बहुत जरूरी बात है, हम बार बार बात करते हैं कोविड की, इकोनॉमी की, लोकस्ट की, इसकी, ट्रम्प की, ये सब हमारे हाथ में बदलना तो नहीं है। वी कांट चेंज के यूएस में क्या होगा, वी कांट चेंज के बाजार कहाँ जाएगा, तो किसी के वास्ते राहें तो नहीं बदलती, जिंदगी की राहें भी नहीं बदलती, जो होना है तो होगा। लेकिन अगर हम खुद को बदल सकें तो ये सफर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये इसका अर्थ है, और मुझे लगता है ये जिंदगी के लिए भी और बाजार के लिए दोनों बहुत मायने रखती है। मैम नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो स्मॉल एएमसी है उसको पूरी उतनी समझ नहीं होती, बड़ी एएमसी हम लोग भी देखते हैं कि टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 है ना, लेकिन आपने 3 सालों में जो कर दिया वो बड़ी बड़ी एएमसी आज 10-10, 15-15 सालों में नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या सोच थी जो आपने 3 सालों में कर दिया? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैं किसी इवेंट में थी, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगी, तो एक्चुअली मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन दिस एएमसी इंडस्ट्री, एंड अनफॉर्चुनेटली आई लव दिस इंडस्ट्री, बट यू नो वी हैव दिस थिंग इन इंडिया कि जो बड़ा है उसकी बहुत इज्जत करो, जो छोटा है वो बेचारा है, और हम बेचारेपन में जिंदगी काटते हैं। तो मैं किसी वेल्थ, आई थिंक वेल्थ फोरम या कोई ऐसा कुछ था, आप तो जानते होंगे ठकराल साहब, मैं लंच आई हैड जस्ट स्टार्टेड एंड आई वेंट टू कलेक्ट लंच एट अ काउंटर। तो कोई सज्जन आदमी मेरे से आके कहते हैं, मैम आई फील हॉरेबल फॉर यू। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? ही सेड आपकी लाइफ बहुत खराब होगी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप स्मॉल एएमसी चलाती हैं, मुझे आपके लिए बहुत तरस आता है। तो एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अननेसेसरी, दिस इज इन आवर माइंड। I always tell my team, and I've told them, you know, I joined this AMC when we were rank 36 or 37 maybe. This quarter we'll finish at rank 15. I have told them since day one, think like number one in your head, and I will tell you all the same thing. Think like number one. It doesn't matter. The market doesn't determine your standing. You determine your standing. You have to think like number one. And when you build a marketing campaign, when you do a presentation, when you run an investment, कोई ये तो नहीं बड़ा होके बनता ना। when you think, when your son aspires to be a cricketer, he aspires to be Sachin Tendulkar ना, he doesn't you know aspire कि यार मैं तो ना रणजी ट्रॉफी प्लेयर बनूंगा। I mean that's not कि रणजी ट्रॉफी बुरी है, लेकिन एस्पिरेशन तो तेंदुलकर वाली होनी चाहिए ना जिंदगी में। So I think that is the one thing that we have tried to do, and अगर आपकी वो एस्पिरेशन हो जाए ना तो वो आपके काम में भी दिखने लगती है। एंड मेरे पापा ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी सफर के माने में। ही सेड, यू नो, अगर कोई अच्छा सफर होगा, इफ इट इज ग्रेट, इफ एनीथिंग इज ग्रेट, इट हैज टू बी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज इट्स डिफिकल्ट इट विल बी ग्रेट। इट कांट बी ग्रेट विदाउट बीइंग डिफिकल्ट। सो दैट इज माय पर्सपेक्टिव। मैम किसी हमारे चाहने वालों ने, आपके चाहने वालों ने एक क्वेश्चन पूछा। वो उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना।
उन्होंने मोनीश पबराई जी का वीडियो देखा था, और मैं उनका नाम भी शेयर करना चाहता हूँ, रवि पटोदिया जी, वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन मैं खुद पूछता, लेकिन तुम मेरे बिहाफ पे पूछ लेना, कि वीडियो तो बहुत अच्छा था जिसमें आपकी टक्कर उनसे हुई थी जिनकी समझ वॉरेन बफेट जैसी मानी जाती है, और लकली वो इंडियन है। और तो उसमें भी उन्होंने पूछा कि आप उनसे बात करके आपके क्या लर्निंग, क्योंकि यहाँ लोगों को उतनी समझ में आती नहीं है, ज्ञान नहीं आता है जो घोट के ज्ञान शायद मिल पाए। आप उसको सिंपल वर्ड्स में उस 1 घंटे के वीडियो के क्रक्स को, क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछे थे इंटेलिजेंट क्वेश्चन थे, मैंने भी थोड़ा देखा और मेरे भी कई चीजें समझ में नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ सिंपल अगर बताएं तो करेगा, मेरे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। तो एक तो आपने मुझे ठकराल साहब एक आइडिया दे दिया है कि मैं उस वीडियो की एक बहुत साधारण समरी बनवा के वैसे सबको भेजूंगे। यू गिवन मी दैट आइडिया, सो आपने मुझे एक मार्केटिंग का भी आइडिया दे दिया है। बट आई थिंक, एंड आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट मोनीश। सो आई डोंट नो मोनीश पबराई, बाय द वे, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ एक्चुअली। ही फॉलोज मी ऑन ट्विटर एंड आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर। एंड मेरी टीम ने एक आइडिया दिया था जब हम ये कनेक्ट सीरीज चला रहे थे, और ये पिछले क्वेश्चन से आपके रिलेटेड, सो आई एम टेलिंग दिस स्टोरी। Yeah, Radhika, बड़ा अच्छा होगा if we could get someone like Monish Pabrai. He has had lunch with Warren Buffett. He is in that league, and वो हिंदुस्तानी है। तो ये निरंजन जो मेरी मार्केटिंग टीम में है, ये उनका आइडिया था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। Now we said, how do we find Monish Pabrai? So I wrote him a message on Twitter कि Monish, it will be lovely, मैं ये सीरीज चलाती हूँ, अगर इसमें आप आ सकें। And he said, Radhika, and I said, I am your fan. He said, I am your fan. I would be more than happy to come. Just get a date. So that is literally how I got this session with Monish Pabrai. So I think sometimes in life, if you just think big, things come. I think the number one thing I learned from him, which he also said in that video about Warren Buffett, is कि जिंदगी में ना humility is very, very important. I mean, Monish Pabrai turned out to be one of the, I've interviewed many people, Vishwanathan Anand, Guru Gaur Gopal Das, many people in life. This guy is a billionaire. And when he spoke to me, he made me feel like I was a star. He actually told me that when he paid to have lunch with Warren Buffett, he bid a lot of money to have that lunch. And he said, Warren Buffett made him feel like Monish Pabrai was the bigger person. He said, आपने 1 घंटे के lunch के पैसे दिए हैं ना, आपको ये lunch में जितना भी time spend करना है ना, उतना करिए. So I think that, and there were many learnings which I will summarize in a longer thing, but that was my number one lesson, that the real greats of the world are genuinely very humble people. डॉक्टर मनोज त्रिपाठी जी का एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई ऑफशोर फंड है? Great question. So actually we have a very large basket of offshore funds, and I have personally been investing in offshore funds since 2011. In fact, in my career, I have never seen the amount of interest in offshore funds that I have seen this time. I can just tell you what there is right now. So we run our offshore funds in partnership with JP Morgan. हम खुद नहीं manage करते हैं, because to manage a China fund or many of these funds, you need an expertise that I think JP Morgan brings. हमारे actually now our funds cover 80% of the world's geography. दो जो हमारे fund सबसे popular हैं, one is the US Technology Fund. This is one that invests in disruptive technology companies. आप गूगल की बात कर लीजिए, अमेज़न की, नेटफ्लिक्स की. कोविड में तो सबको पता है that technology has overtaken all our lives. That's how we are speaking. So this is one of our most popular concepts, focusing on technology as a theme, because India में technology means Infy and Wipro, which is very different. Second fund that is very popular is, and this is, आप please patriotism को separate करिए, मैं भी एक सरकारी officer की बेटी हूँ, I get very scared when I talk about this, is our China fund. If you are looking to invest in an emerging economy besides India, our China fund is 10 years old and a fantastic product in another market that is doing well after COVID. We also have a fund for Asia, we have a fund for Europe, we have another fund for US. So this is our basket. And for everyone, I did not talk about international funds in detail, but please do consider अपने asset allocation में international funds. किसी ने मेरे को ये funds के नाम पूछे हैं, तो मैं इनके नाम ऐसा कर रही हूँ, screen पे भी लिख रही हूँ. You can also go to edelweismf.com
और उसमें ना देयर इज अ होल सेक्शन ऑन इंटरनेशनल फंड्स, तो आपको सारे फंड्स की डिटेल मिल जाएंगे. आई एम श्योर ठकराल साहब विल गिव यू देम आल्सो. श्योर, मैं इनको पर्सनली दे दूंगा. हाँ, वैसे मैंने मैम हाँ. आपको मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स तो आपके सब इस समय अच्छे चल रहे हैं. खासकर आपने जो बैफ किया, फर्स्ट डे से हम लोग बैफ सुन रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि फर्स्ट डे हम लोग ने निवेश शाह को सुना था और उन्होंने बैफ का. लेकिन मैम जिन लोगों ने स्टार्ट किया और जो आपने 3 साल में बैफ की परफॉर्मेंस दी, फैंटास्टिक. आपने तो अपने बैफ को नंबर 1 कर दिया. और फॉरेनर्स कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया मेरे पास कि हाउ डू फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन प्रोडक्ट्स. Some of our products do allow now, whether it is NRI or foreigners, I don't know. I'll have to get back to you on foreigners and what. Non-NRI, foreign citizens. Foreign citizens, I don't think can do mutual fund products, Thakral Sahab, if I am not wrong, unless they come through the FPI route. Okay. NRIs can. For us, we take all NRIs except Canada. Acha. Your funds in Mauritius, Dubai are... We have a fund, yes, and we can get you more details about it. That is based in Ireland, but that is a different fund. We have an equity fund based in Ireland. I'll have Paras email you the details of that. We have one fund based offshore. अच्छा मैम, इक्विटी में कौन सा अच्छा है? हमारे क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि लार्ज, मिड और मल्टी कैप, और लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या बैफ में ही डाल दूं? देखिए, मैं तो अपना 70% ऑफ पैसा अपने बैफ में डालती हूँ. अगर आप मेरे से एक फंड पूछेंगे तो मैं बैफ का ही नाम लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि, एंड आई एम ग्लैड यू एक्नॉलेज दैट BAF was actually the first project I took on as AMC CEO, because it was a different fund back then, and I said let's turn this into something big. So whenever people say nice things about how our BAF is done, I am very happy. I think अगर what most of us look for in life is कि यार जिंदगी में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन जब मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो तो खुद के साथ डिजास्टर नहीं होना चाहिए. I think BAF accomplishes that. I was just looking at some numbers. I think in the last year and a half, when markets are up only 3-4%, BAF is up 12-13%. I am very happy with that kind of outcome. So I think BAF is your dal chawal. If you are not doing things like BAF, you can also do products like multi-cap fund. That also can be core. And then things like international funds, mid and small cap funds, those can all be more satellite products. मैम एक क्वेश्चन आया कि SIP भी इसी में करनी चाहिए, बैफ में कर सकते हैं? जैसे आप सब, आपने कहा मैं SIP करती हूँ, तो क्या 70% पैसा जो है वो SIP के थ्रू बैफ में जाना चाहिए? Actually, that is what I do. BAF is a great fund for both. There are very few funds that are good for both lump sum and SIP. BAF is one that is good. So what I do is and this is just my example, I'm a salaried professional. I do my SIPs in BAF, and then if I ever get lump sum bonuses and all, then I keep adding to them. So that is the way I do it. Actually, हमने SIP experience BAF का share करूँगी मैं आपके साथ. Our SIP experience is BAF is 1-2% better than the lump sum experience. If you do a 3-year SIP in BAF, you'll be very, very happy with the numbers, even in a period of 3 years. Okay. प्रदीप कुल जी का एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने किया, you have been tweeting on US fund, sometimes US products and Indian equity products में क्या फर्क है? US equity का भी फैशन और बातें होने लगी हैं last 2-3 quarters से. Very good question. I'm glad you asked it. So I have been tweeting on international funds, and I have been talking about this since 2011, before I joined MF industry, because when my background was such that I lived in the US. So when I lived in the US, I didn't put all my money in the US. I put 50% of it outside. Then I moved to India and realized यहाँ तो हम सारा पैसा India में डालते हैं, which was very weird for me. So me and my husband have been doing international for a long time. अब unfortunately, as he said, थोड़ा सा इसका fashion हो गया है. Please do not do this because this is fashionable or because recent performance is good. US funds have the same risks as Indian equity funds. यहाँ आप इंडियन कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, वहां आप यूएस कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं. तो इसमें निवेश करना जरूरी है, लेकिन सही कारणों के लिए जरूरी है. आप इसमें निवेश इसलिए करिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा आपको. कभी यूएस अच्छा करेगा, कभी चीन अच्छा करेगा, कभी इंडिया अच्छा करेगा.
थोड़ा एलोकेशन इंडिया से दूर होना चाहिए, इसलिए आप करिए, लेकिन इसकी रिस्क इंडिया फंड से बिल्कुल कम नहीं। दूसरा मैम ये पूछ रहे हैं कि इधर काफी गोल्ड पे अट्रैक्शन आया है, आपका गोल्ड के बारे में क्या व्यू है? Very similar view to what I had for international funds. Good product, but don't do it क्योंकि अभी गोल्ड में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं. That is dangerous. अपने एसेट एलोकेशन का 5% कर लिए. अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, then you may not need to do financial gold, but please do it as part of your asset allocation, not because it is done. You should never buy anything just because it's done well recently. Buy things for the right reasons. मैम आप पहले क्या होता था कि फॉरेनर्स आते थे, मार्केट उठा देते थे, फॉरेनर्स जाते थे, मार्केट गिर जाती थी. अब तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार? I think well before people started talking about Atmanirbhar Bharat, I think the contribution of MF industry, and it includes Thakral Saab advisors like yourself, in building, I mean, we have a $1 billion SIP book in this country, and gradually we are cutting foreign ownership of our market and increasing domestic ownership. आपको याद होगा 10 साल पहले कोई SIP की बात नहीं करता था, सिर्फ FII के फ्लो की बात करता था. एटलीस्ट अब वो थोड़ा ट्रेंड तो चेंज हो गया है. So I think it is fantastic. I think we need a bigger SIP book as an industry and a bigger domestic capital base. It will add to the stability of our market, which is constantly moving because of FII flows. एक बड़ा ट्रेड सीक्रेट का आपका क्वेश्चन आया है, मैं लेता हूं, माइंड मत करिएगा. किसी ने आपकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी और उसने कहा कि 2009 में जब ये अपने हस्बैंड नलिन जी के साथ और कोई कुलीग था जो आपके AQR में था, और जब ये इंडिया लौटे तो 2.5 मिलियन रुपीस से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जो अभी आपने बताया था फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट, और शायद आपके वीडियो में उन्होंने देखा होगा, वीडियो भी मैंने रन की थी. तो उन्होंने कहा इतने पैसे कैसे बनाए मैडम, हमको भी बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि जो आपने 37 ईयर में कर दिया, हमारे बाप दादा 73 ईयर्स में नहीं कर पाए. So funny question. I was 24 when we started Forefront Capital. So we had no idea what we were doing. 24-year-old kids are quite clueless in life. I think the only thing, and we had just moved back from the US, and imagine my situation, right? मैं तो कभी इंडिया में रही नहीं थी, because मेरे पापा बाहर रहे हैं. My other two partners had lived in India for some time, and we literally had no idea था SEBI क्या चीज थी, वो भी हमें नहीं पता था. I think when you are 24 ना, you have a certain amount of madness. आपको लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हो, and वो जज्बे से आप काफी आगे जाते हो. We never, the one thing we never did, and I would give this advice to people, is we never thought कि 100 करोड़ कैसे होगा. We started with 25 lakhs, and we only thought कि यार ये 25 का ना 5 कैसे करने हैं, और ये 5 का 10 कैसे कर लें, और जब 10 हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि 10 का 20 हो जाएगा, फिर 20 पे समझ आ जाएगी कि 100 हो जाएगा. That's how I don't believe businesses can be done with so much strategic planning. If you ask me, when I joined the AMC business, we were a 6,000 crore business. Thakral Saab, today we are a 42,000 crore business after the last series of Bharat Bond. We never planned. We had a vision कि कभी एक दिन 3 लाख करोड़ करेंगे, but the plan was कि 6 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से 10 कर देंगे, फिर gradually. So it has been a gradual story. अब ये स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छी लगती है that it is gone from 25 lakhs, but the journey is client by client, single client by single client. मैडम एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है. मैंने 2008 में DFBA ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक मिशन बनाया था 10,000 करोड़. तो उस मिशन को देख के मैं भी एक्साइट हुआ, और मैं भी घर पे आके मैंने मिशन बनाया कि मैंने को इस बार AUM डबल कर देना. एक हफ्ते के बाद मैंने महसूस किया कि नहीं, ये मेरा दाल चावल नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी किया नहीं, सेल्स कभी किया नहीं, हमेशा सर्विस किया. तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपने डबल का टारगेट लिया तो उससे टेंशन होता है लाइफ में? You know, I don't think about numbers and so I was doing another conversation with someone, and while we put numbers and targets, I'm actually not the kind of CEO who harasses my team every day कि तुम्हारे नंबर कितने हुए, तुम्हारे टारगेट कितने हुए. शायद मैं, जो आप कह रहे थे ना, सेल्स बैकग्राउंड से नहीं आती. मुझे लगता है that if I can hire very good people, and I think I have,
And if I can give them clear direction कि जिंदगी में ये करना है, ये हमारे rules हैं, and if I can motivate them, I genuinely think I am a conductor of an orchestra. अगर मेरे players अच्छे हैं और मैं उनको थोड़ा सा ठीक से conduct कर लूँ, उनकी life में ज़्यादा तंग ना करूँ, I make sure they are well fed, they show up every day, I will be very successful. That is when and I am a new leader, yeah, I'm reasonably young still, so I'm also figuring this out. So I don't take unnecessary tension on आज कितना नंबर हुआ और कल कितना नंबर होगा. आपको यकीन नहीं होगा कि इवन फॉर द सेकंड सीरीज जो हमने भारत बॉन्ड ETF किया, मैं कभी नंबर नहीं देती लोगों को, नंबर हो जाते हैं. बहुत अच्छा कहा. लेकिन मैडम मेरे को लगता है कि मैंने मोदी जी को देखा कि सुना है कि वो 5 बजे उठ जाते हैं. योगी जी को हमारे देखा वो 4 बजे उठ जाते हैं. मेरी कभी नींद 3 बजे खुली तो आपका एक ट्वीट गिरता है, जस्ट ट्वीटेड. ये क्या है मैम? क्या आप 3 बजे ट्वीट करती हो या वो 3 बजे शेड्यूल करती हो? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसका जवाब जानने के लिए. मैं शेड्यूल नहीं करती, उतना मैं सोचती नहीं हूँ. I don't wake up very early, to be honest. But I like to tweet, and I usually am up till about 12 or 1. I don't know why they show up on your feed at 3. A lot of people give me a lot of affection for my Twitter account. I think one thing people may not know about me, मुझे लिखने का बहुत शौक है. मैं 4 साल की उम्र से लिख रही थी. जब ये बाहर हम एम्बेसीज में होते थे ना पापा के साथ, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो फंक्शन होते थे उनकी भी मैं कविता लिखती थी, कभी झांसी की रानी सुनाती थी. ऐसा ये मुझे बहुत शौक है. So my Twitter is just an expression of fun. I just have fun. Now people think ये बहुत strategic है या ये plan कर रही होंगी, या आजकल लोग मेरे से बहुत पूछने लगते हैं, कोई personal brand strategy नहीं है. मुझे लाइफ में मजा आ रहा है, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ. और अगर उससे लोग खुश होते हैं तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है. नहीं, कई बार आपने मेरे को भी उसमें मैसेज किया या कई बार मेरा भी रेफरेंस दिया, बनारस का भी रेफरेंस दिया. और आपकी वो जो ग्रुप फोटोग्राफ है विथ योर नानी, मदर एंड फैमिली मेंबर्स, वो तो फैंटास्टिक. आज तक हम लोग के डीपी में लगी हुई है, हम लोगों के ग्रुप में. आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. एक मैसेज दीजिए हमारे एक्सपोर्टर्स फ्रेंड्स को कि वो कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के साथ ये दिक्कत होती है कि हर समय उनके पास पैसे नहीं खाली होते, और जब खाली होते हैं तो अच्छी तरह से खाली होते हैं. फिर जब इन्वेस्ट करना होता है तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको फिर बीच बीच में जरूरत पड़ती रहती है. और दूसरा, उन लोगों की कोई लाइफ टाइम बहुत प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि बिजनेस आया तो सब कुछ बेच बाच के, सब कुछ एफडी तोड़वा करके सारा बिजनेस पे लगा के एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो थोड़ा उनके लिए भी मुझे बताइए किस तरह उनके लिए प्लानिंग की जाए कि उनका एक मैसेज एक्सपोर्टर्स को आपके शब्दों से सुनना चाहिए. My brother is also in a similar business, so I identify. Sometimes incomes are also unstable. What I tell him also, which is what I'll tell you, is कि आपकी income, because it's uncertain ना, don't take it and invest it in one shot, because you may get a time when markets are very high, etc. या तो आप BAF जैसे products use करिए या आप STP के जरिए करिए. आपकी income bullets में आ सकती है, लेकिन आपका निवेश मेरे हिसाब से systematic होना चाहिए. और दूसरी तरफ जब आपको निकालने की जरूरत हो तो आप SWP का जरिया यूज किए. आपका I think the biggest challenge in your profession is it is not systematic, but your investment has to be systematic. That is the one advice I would give to you. मैम, एक 21 साल की बच्ची ने एक क्वेश्चन पूछा है, और अभी तक मैं बच्ची समझ रहा था उसको, लेकिन आपको समझने के बाद लगता है कि उसको भी सेंस है. उसने कहा, मैम आई एम 21 ईयर ओल्ड, सो व्हाट इज द आइडियल पोर्टफोलियो ऑफ माइन. और उसकी इनकम भी ज्यादा नहीं है, वो केवल 5,000 का स्टाइपेंड पा रही है. अरे वाह. सो आई एम वेरी हैप्पी कि तुम 21 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर रहे हो. माय होप इज कि तुम्हारा जो 5,000 का स्टाइपेंड है उसमें से तुम 1-2 हजार रुपए बचा लो. आइडियल पोर्टफोलियो की मत सोचो, एक इक्विटी फंड में और एक डेट फंड में तुम SIP शुरू कर दो. दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू. यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, देन यू विल लर्न. वेरी गुड. मैम, मैं की अवे एक बार फिर से जो है ले रहा हूँ, और कोई चीज छूट रही हो तो बताइएगा, क्योंकि एक तो आपने कहा कि अपने पोर्टफोलियो के साथ मतलब अपने इमोशन को शांत रखें, यानी हम रोज ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टिंग करें, यही कहना चाह रही हैं. बिल्कुल. दूसरा, आपने टाइमिंग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. शायद अभी तक किसी के समझ में नहीं आया. विस्की तो सभी शाम को खोल के पीते हैं, और आपने बताया कि विस्की का रेट किस तरह से ईयर बाय ईयर चेंज होता है. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. और मेरे ख्याल से
लोगों को समझाना बहुत आसान होगा। और आपने SIP के लिए बोला कि जब आप वॉल स्ट्रीट से होके आके इतनी रिसर्च करने के बाद आपने SIP को एक्सेप्ट किया, यानी आपको कोई भी 2008 की मंदी हो या 2020 की मंदी हो, आपको ये नहीं लगता कि सारा पैसा मैं डेट वाला निकाल के उसमें डाल दूं, ऐसा नहीं लगता। फिर भी एक एलोकेशन तो आप करती होंगी ना कि बैप के अलावा भी कुछ डेट में, जैसे अभी भारत बॉन्ड ही आया था, तो आपने जरूर अपने लिए भी इन्वेस्ट किया होगा। इट इज 100% डेट। तो मेरा ब्रॉड मैं आपको बता देती हूँ, इट्स क्वाइट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड। 70% ऑफ माय मनी गोज इनटू बैफ, उसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है। आई हैव वेरी भारत बॉन्ड, and then some of my money goes into international funds which I talked about, and some money goes into SIPs or mid and small cap funds. मैं debt इसलिए नहीं करती because I have a home loan, so at current debt rate, so मैं बड़ा transparently बता रही हूँ, it doesn't make sense to do outright debt when you have a home loan, but वो काफी debt मेरा BAF के through हो जाता है because BAF also holds 20-30% debt. सॉरी, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने क्लाइंट्स की तरफ से, अपने एक्सपोर्टर फ्रेंड्स की तरफ से और कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आपको कितना थैंक यू करूं। उसके लिए मेरी टीम सबको ही बारी बारी से आकर के आपको थैंक्स करना चाहती है। आप मेरे को अलाउ करोगे, मैं अपनी टीम से थोड़ा परिचय कराऊंगा आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खुशी होगी।